Okay. Good morning, students. Okay, let's come to the next topic. Last topic, which in my last video, I had told you something about osmosis and osmotic pressure. Next topic under this chapter comes abnormal molecular mass. What do we mean by the word abnormal molecular mass? If you see the formula of any of the colligative properties, whether it is Raoult's law or it is elevation in the boiling point, depression in the freezing point, we say that it is related to molecular mass of the solute. In all the cases, it is related to molecular mass of the solute, and the colligative property is inversely proportional to molecular mass of the solute. Just take any of the formulas. If you see Pa0 minus Pa upon Pa0 is equal to Wb upon Mb. Relative lowering is inversely proportional to molecular mass of the solute. Similarly, delta Tb is equal to, if you see the formula, delta Tb is equal to Kb into Wb into 1000 divided by Mb into W. That means in all the cases, if you see all the colligative properties we have related it to molecular mass of the solute, and we find one important feature, that the colligative property is inversely proportional to molecular. Now, if we calculate the molecular mass, suppose we have dissolved any solute, we are talking about a non-volatile solute, suppose we have potassium chloride. Potassium chloride, if we drop into water, KCl, the molecular mass which comes from the colligative property, if we have all the important values, the molecular mass of KCl as calculated by the colligative property will be found to be different from as calculated by its formula. Potassium chloride का mass क्या होगा? Potassium is 39 and chlorine is 25.5. If you add them, this comes out to be 58.5. लेकिन अगर यही KCl वो हम, which is a non-volatile solute, if we dissolve it into water and we by means of formula we calculate the molecular mass of that solute, it is found that the molecular mass as calculated by its formula is different from as calculated by its colligative property. But this should not happen. जो फॉर्मूला जो भी आप डाल रहे हो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, उसका मॉलिकुलर मास सेम होना चाहिए as compared with the molecular mass of the solute should be same, whether by a formula or by a colligative property. But we find that it is found to be different. So what is abnormal molecular mass? The difference in the molecular mass which is observed when a difference in the molecular mass as observed by its formula, by formula mass, and as observed by the colligative properties, if found to be different, this is known as abnormal molecular mass. अब abnormal molecular mass के दो important reason है. When we dissolve a non-volatile solute into a solvent, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो भी solute हम dissolve कर रहे हैं वो ना तो dissociate हो रहा है और ना ही associate हो रहा है. Dissociate मतलब जैसे हमने पोटेशियम क्लोराइड को पानी में डाला, what will happen? Because it is an ionic compound, it will break down into potassium ions and chloride ions. Benzoic acid या acetic acid के molecules, they undergo association. Two benzoic acid molecules, suppose benzoic acid is a solute, two benzoic acid के molecules, they get associated by means of hydrogen bonding. Acetic acid also gets associated by. तो जब फॉर्मूला मास, अगर हम ये मान के चलें कि जो हमने सॉल्यूट डिसॉल्व किया है वो एसोसिएट भी नहीं हो रहा है और डिसोसिएट भी नहीं हो रहा है व्हेन इट इज ड्रॉप्ड इनटू वाटर, देन योर फॉर्मूला मास विल बी सेम एज मास डिराइव्ड बाय द colligative property. Then there will be no abnormal molecular mass. But what are the two important reasons for abnormal molecular mass? Number one, dissociation of the electrolyte, and number two, association of the electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट अगर डिसोसिएट होता है तो भी मास सेम नहीं आएगा. आई होप एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आपको समझ में आया. एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मतलब जब आप मॉलिक्यूलर मास किसी फॉर्मूला से निकालते हैं और आप
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी द्वारा फॉर्मूला में लगा के वैल्यू लगा के जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं और दोनों की वैल्यू डिफरेंट आती है, दैट इज कॉल्ड एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब ये वैल्यू डिफरेंट क्यों आती है? क्योंकि हम ये मान के चल रहे थे अभी तक जो हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला कि जो सोल्यूट है वो डिसोसिएट भी नहीं हो रहा है और एसोसिएट भी नहीं हो रहा। अगर वो डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं होता है तब उसका फॉर्मूला मास सेम आएगा एज कंपेयर टू मॉलिक्यूलर मास। द फॉर्मूला मास विल बी द सेम एज कंपेयर टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज द सोल्यूट विच यू आर डिसॉल्विंग इज आइदर एसोसिएटिंग और डिसोसिएटिंग। तो फॉर्मूला मास और मतलब मॉलिक्यूलर मास एज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला and as calculated by the colligative property will be found to be different. Now there are two reasons मैंने अभी बताया कि number one reason is association and number one reason is dissociation and number one reason is association. For example, I have potassium chloride और मैंने potassium chloride को which is a non-volatile solute water में डाला. What will happen? Potassium chloride will break down into its ions, potassium ions and chloride ions. ठीक है, potassium ions and chloride ions. तो number of particles बढ़ जाएंगे, number of particles in the solution will increase. number of particles जब बढ़ेंगे तो colligative property भी बढ़ेगी because colligative property is directly proportional to number of particles. तो अगर colligative property बढ़ेगी तो molecular mass क्योंकि inversely proportional है तो वो कम हो जाएगा। तो जब एक सपोज आई हैव पोटेशियम क्लोराइड, मैंने पोटेशियम क्लोराइड को पानी में डाला, व्हाट विल हैपन? पोटेशियम क्लोराइड विल डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन विल इंक्रीज, colligative property will also increase, but since colligative property is inversely proportional to molecular mass will decrease. फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम क्लोराइड को जब हम पानी में डालेंगे तो उसका मास हमारे फॉर्मूला के हिसाब से 58.5 आएगा, लेकिन अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूला से निकालेंगे तो वो वैल्यू उससे कैसा आएगा? क्योंकि डिसोसिएट हो तो वो वैल्यू कम आएगी। वो वैल्यू कैसे आएगी? कम आएगी। दिस वॉज व्हाट? डिसोसिएशन ऑफ द ring. Next reason is association. If I have two acetic acid molecules, I am drawing it and showing you कि कैसे दोनों molecules के बीच में कौन सी होती है, कौन सी bonding हो जाएगी, that is hydrogen bonding, which you can see. If you see very clearly, this is one acetic acid molecule and there is another acetic acid molecule. दोनों के बीच में क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। दोनों के बीच में जो डॉटेड लाइंस आप देख रहे हो, यू सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो व्हाट हैपेंस? सपोज मेरा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एसिटिक एसिड था, जब हमने उसको पानी में डाला तो इट एसोसिएट्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑल्सो डिक्रीजेस, बट सिंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, इट इंक्रीजेस। एसिटिक एसिड का मास जब आप फॉर्मूला से निकालेंगे वो आएगा 60, और जब आप उसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी द्वारा निकालेंगे तो आप देखेंगे कि वो प्रॉपर्टी द्वारा कैसा आएगा? ज़्यादा आएगा। सो दिस इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। व्हेन एनी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड, इफ द mass, molecular mass calculated from the molecular formula is found to be different from as calculated by the colligative property, this difference is known as abnormal molecular mass. There are two reasons for abnormal molecular mass. Number one, dissociation. हम अब तक ये मान के चल रहे थे कि मॉलिक्यूल एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होता। सपोज लेकिन अगर हमारा मॉलिक्यूल एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होता तो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी द्वारा जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो सेम होगा एज कम्पेयर टू द मॉलिक्यूलर मास एज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। लेकिन अगर डिसोसिएट हो रहा है तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने जो बताया था वो KCl, सपोज सोडियम क्लोराइड है जो एक आयनिक सॉल्ट है। सोडियम क्लोराइड को आपने पानी में डाला, इट ब्रेक्स डाउन इनटू सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज। Since colligative property is directly proportional to number of particles, तो colligative property भी बढ़ेगी, लेकिन क्योंकि colligative property inversely proportional है molecular mass के, तो molecular mass कम हो जाएगा। This was for
डिसोसिएशन. फॉर एसोसिएशन क्या होगा? फॉर एसोसिएशन मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाएंगे. दूसरा एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड, दूसरा एग्जाम्पल है बेंजोइक एसिड. अगर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम हो जाएगी, लेकिन क्या बढ़ जाएगा? जो मॉलिक्यूलर मास है, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, वो बढ़ जाएगा. दिस इज नोन एज. नाउ इन ऑर्डर टू, इसका मतलब हमने जितनी भी हमने अभी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स देखे, दे शुड बी मॉडिफाइड समथिंग. क्योंकि हम ये नहीं मान के चल रहे हैं कि क्योंकि जो भी सोल्यूट आप डालोगे वो जरूरी है वो एसोसिएट भी होगा, डिसोसिएट भी होगा. तो जहाँ पर भी कोई आयोनिक सॉलिड है या कोई डाइमर बनाने वाला सॉलिड है, अगर हम यूज़ कर रहे हैं एज अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो वो एसोसिएट भी होगा, डिसोसिएट भी होगा. तो वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ न्यू फैक्टर इन ऑर्डर टू मॉडिफाई अवर दीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि हमारा सॉल्यूट एसोसिएट और डिसोसिएट हो रहा है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज वांट ऑफ फैक्टर. व्हाट इज वांट ऑफ फैक्टर? वांट ऑफ फैक्टर के 3-4 डेफिनेशंस हैं. नंबर 1 डेफिनेशन के हिसाब से इट इज नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला द्वारा निकाला गया मॉलिक्यूलर मास. एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, पहली बात तो वांट ऑफ फैक्टर इज डिनोटेड बाय आई, स्मॉल आई. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई. In my notes, when I click the photographs of the notes, that there you will be seeing I, small I represents want of factor. What is want of factor? Want of factor is actually a correction which we do in the colligative properties which arise due to association and dissociation. I can be given as normal molecular mass divided by abnormal molecular mass. Normal molecular mass वो है जो हमने उसके फॉर्मूला से कैलकुलेट किया. एबनॉर्मल वो है जो हमने उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी द्वारा निकाला. दूसरे डेफिनेशन के हिसाब से इट इज नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ठीक. तीसरा डेफिनेशन के हिसाब से इट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डेफिनेशन ऑफ डिसोसिएशन. तो 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं आई के. आई इज कॉल्ड वांट ऑफ फैक्टर. आई के हिसाब से नंबर 1 इट इज नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ओवर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. नंबर 2 इट इज abnormal colligative property divided by normal colligative property. Number 3 it is number of particles after dissociation or association divided by number of particles before association or dissociation. हमारी जितनी भी colligative property हैं उनको हम modify करेंगे by new formulas by introducing the factor I in them. जैसे हम कहेंगे delta TB is equal to I into KB into WB into 1000 upon MB into WA. We have introduced a new term I here. Numericals में भी अगर मुझे मालूम हो कि जो सॉल्यूट है वो डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है, तो हमें न्यूमेरिकल्स में जहाँ भी हम यूज़ कर रहे हैं हमें आई की वैल्यू इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी. वी विल डू न्यूमेरिकल्स ऑन दिस ऑल्सो. फिर दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी थी डेल्टा टी एफ. वहाँ भी हम आई इंट्रोड्यूस कर देंगे. आई इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए. वी हैव इंट्रोड्यूस द टर्म आई ऑल्सो हियर. सिमिलरली अभी आपने कहा C is equal to IRT. What is C? Sorry, pi is equal to IRT. I into C into R into T. कुछ नहीं किया है हमने सारी अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में I का टर्म दैट इज वांट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया. PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल टू I इंटू WB upon MB into MA upon WA. So चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप देख लो, उनके स्टेटमेंट्स को, जो उनके मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है. उनके आगे आई टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया. आई इज द वांट ऑफ फैक्टर. Where is I used and how will we use them in the numericals? That we will discuss in my next video. Okay, bye bye.